Hello students, welcome to another lecture of AKTU of the subject Industrial Pharmacy. Myself, Payal Kesharwani, working as an assistant professor at Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. This is lecture 6 of Industrial Pharmacy and this lecture covers solubility analysis. In the last lecture, we have discussed about the solubilization and dissolution studies and what is the importance of dissolution and solubilization in pre-formulation studies. That means it helps to determine the bioavailability of the drug, because through these studies through these data we can analyze that how our drug is bioavailable and how much our drug is not. So accordingly we can do certain modification and we can enhance the bioavailability of the drug. So in this lecture, that is lecture number 6, we will study dissolution stability analysis. So in stability analysis, we will be covering different topics such as what is stability, pre-formulation stability studies, purpose of stability studies, importance of stability studies, types of stability studies, various methods of stability studies and factors affecting chemical stability. So all these things we are going to study in this slide. So first we should know what is stability, how we can define stability. So stability is the capability of a particular formation. It is the capability of the formulation in a specific container or closure system to remain within the physical, chemical, microbiological, therapeutic and toxicological limits. In short, we can say it is the capacity of the formulation. Whenever the formulation is prepared and it is packed into a different packaging. So how long that drugs is stable in the physical term, in the chemical term, in microbiological term, in therapeutic term और toxicological term. So जो भी हमारा ड्रग जब भी प्रिपेयर्ड होता है तो इट शुड बी स्टेबल इन दीज टर्म्स. अगर वो स्टेबल नहीं होता है देन वो डिग्रेड हो जाता है एंड हम डिग्रेडेड ड्रग किसी भी पेशेंट को नहीं दे सकते हैं. तो दैट इज व्हाई वी हैव टू मेक श्योर दैट व्हाटएवर फॉर्मुलेशन वी आर प्रिपेयरिंग इट शुड बी स्टेबल in different condition. So in short we can say how long a drug is having the shelf life, how long a drug is stable. So this is known as stability. Through the stability study we used to analyze different condition on which a drug is stable or not. So this is we are going to study on the stability study. Now we have to understand what are the pre-formulation studies for the stability study and how this stability study is going to give a data which will be helpful in formulating the different formulations or storing it into different condition or during transportation etc. so as to maintain its shelf life. So first you will see pre-formulation studies help us to identify the chemical stability of the drug. In pre-formulation studies what we do, we keep a drug into different conditions, whether it is high temperature, low temperature, high humidity, low humidity, different pH condition, different photolysis condition. So in different condition we used to keep the drug and it used to give the data about the chemical stability. अगर हम different कंडीशन में रखेंगे बिकॉज जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम एक अलग एनवायरनमेंट होता है, पैकेजिंग करते टाइम अलग एनवायरनमेंट होता है. देन अगर हम उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद स्टोरेज होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जहाँ पे ड्रग को डिफरेंट कंडीशन अंडरगो करना होता है. तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी जो ड्रग है डिफरेंट कंडीशंस पे वो स्टेबल रह रही है या नहीं रह रही है. अगर इट इज गोइंग टू चेंज इन दोज कंडीशन, सो व्हाट प्रिकॉशन वी कैन टेक टू मेक अ ड्रग
स्टेबल. सो मेनली वो केमिकल स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट, ये जो स्टेबिलिटी स्टडीज होती है, स्टेबिलिटी स्टडीज कैन बी स्टडीड बोथ इन द सॉलिड स्टेट एंड इन द सोल्यूशन स्टेट, बिकॉज जब भी आप फॉर्मुलेशन बनाते हो तो आपका फॉर्मुलेशन सॉलिड भी होता है एंड लिक्विड भी होता है. तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सॉलिड में आपका ड्रग है तो वो स्टेबल हो रहा है डिफरेंट कंडीशन में या नहीं, या फिर आपका ड्रग लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है तो वो डिफरेंट कंडीशन में स्टेबल है या नहीं. नेक्स्ट, प्री फॉर्मुलेशन स्टेबिलिटी स्टडी. तो जब भी प्री फॉर्मुलेशन स्टेबिलिटी स्टडीज हम करते हैं फॉर द ड्रग कैंडिडेट और द डोजेस फॉर्म. ड्रग कैंडिडेट मीन्स हम ड्रग के ऊपर स्टेबिलिटी स्टडी कर रहे हैं, डोजेस फॉर्म हम डिफरेंट टैबलेट कैप्सूल के ऊपर स्टेबिलिटी स्टडीज कर रहे हैं. और हम ये देख रहे हैं कि अगर हम उसको पैकेजिंग कर रहे हैं, इमीडिएट पैकेजिंग कर रहे हैं, तो इट इज stable or not, because before marketing the drug should be stable, during marketing the drug should be stable until the patient consumes it. So to test the stability we have to perform different pre-formulation study. Now we will see what are the different stability issues the drug undergo when it is unstable. So first is precipitation of the drug due to altered solubility. ड्रग क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है. आप डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन में उसको प्लेस करते हो, उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज डिक्रीज करते हो, तो ड्यू टू ऑल्टर्ड सॉल्युबिलिटी क्या होता है, आपका ड्रग प्रेसिपिटेट हो जाता है. तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में ही हमें पता चल जाएगा कि हमने ये डिफरेंट सॉल्वेंट यूज किया या उसमें इंक्रीज टेम्परेचर या डिक्रीज टेम्परेचर किया तो हमारा ड्रग प्रेसिपिटेट होने के चांसेस होते हैं. सो वी विल टेक दैट प्रिकॉशंस. Next, it undergoes degradation of the drug into the inactive form. Sometimes it happens that with the duration of the time ड्रग आपका इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. क्यों हो जाता है, बिकॉज उसको डिफरेंट एनवायरमेंट चेंज मिला जिससे एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया. नेक्स्ट है डीस्टेबलाइजेशन ऑफ ड्रग इनटू जीआईटी. कई बार होता है कि हम ड्रग का फॉर्मुलेशन कर लेते हैं एंड व्हेन इट गोज इनसाइड द स्टमक दैट इज इन कॉन्टैक्ट विथ HCl, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है, जब उसके कॉन्टैक्ट में वो आता है तो डिग्रेड हो जाता है. ड्रग क्या हो जाता है, इट डिग्रेड. तो जब अगर ड्रग डिग्रेड हो जाता है तो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल पाता है. तो द मेन थिंग इज वी हैव टू सी कि whether it is going to, when it is going to the stomach it is getting degraded or not. So this degradation is important. This identification is important during the pre-formulation study. Otherwise, whatever batch we are preparing, it will be wasted. Next is change in particle size. It happens especially in case of suspension. Change in particle size especially happens in case of suspension. तो सस्पेंशन में क्या होता है कि अगर आपका सस्पेंशन इनस्टेबल होता है तो इट रिजल्ट्स इन फ्लॉक्यूल फॉर्मेशन और दिस फ्लॉक्यूल सेटल डाउन एंड फॉर्म्स द केक. If it is a deflocculated suspension, it settles down and they form a hard cake. So with time what happens? With the formation of the floccule, particle size increases. Sometimes this attraction is so strong that after dispersing also, after redispersing also, it is not dispersed into the dispersion medium. So why? Because आपके particles के बीच में बहुत सारे charges हैं. There are more charges present in the particles which are attracting the other particles. So what happens? These particles accumulate and they increase in the particle size. This also happens in case of emulsion. With time, different globules which are present in the emulsion, they combine and they form a bigger globule. So this is one of the instability problem of the emulsion, and this is known as coalescence. So coalescence can result into creaming of a emulsion or into cracking of a emulsion, which is one of the most important instability issue which a scientist has to see when they are preparing the emulsion or a suspension. Next is decreased rate of disintegration, dissolution and absorption.
So what happens when your drug is not stable? It will not disintegrate, it will not dissolve, it will not dissolve, and it will not also absorb. So these are so what happens if your drug is not getting absorbed? It will not be bioavailable. So ultimately you will not get the pharmacological effect. Why? Because your drug was unstable, that is why it was not absorbed. तो अगर हमें ये सारे प्रोसेस करने हैं और फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स लाना है तो योर ड्रग शुड बी इन द स्टेबल स्टेट. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द हार्डनेस ऑफ द टैबलेट. समटाइम इट हैपन्स दैट इफ योर टैबलेट इज नॉट स्टेबल, आपकी टैबलेट ऐसी बनी है जिससे आपकी हार्डनेस इंक्रीज हो गई है, तो हार्डनेस इंक्रीज होने के कारण ड्रग आपकी टैबलेट आपकी डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, और डिसइंटीग्रेट नहीं हुई तो वो आपकी डिसॉल्व भी नहीं होगी. तो इसके कारण क्या होता है, आपकी टैबलेट अनस्टेबल हो जाती है. आप किसी भी फॉर्मुलेशन को अनस्टेबल कब बोलोगे? जब वो अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं दे पा रही है, उसका फिजिकल फॉर्म चेंज हो रहा है, उसका केमिकल फॉर्म चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे जो टैबलेट है इट शुड बी सच दैट इट शुड डिसइंटीग्रेट, बट यहाँ पे टैबलेट डिसइंटीग्रेट नहीं हो पा रही है. तो ये क्या क्रिएट कर रही है? इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रही है. नेक्स्ट इज सॉफ्टनिंग ऑफ टैबलेट ड्यू टू एक्सेसिव बाइंडर. कई बार हम इतना ज़्यादा बाइंडर्स यूज़ कर देते हैं कि टैबलेट आपकी सॉफ्ट हो जाती है. एक्सेसिव बाइंडर्स के कारण उसमें सॉफ्टनेस डेवलप हो जाती है. तो उससे क्या होता है, आपकी टैबलेट स्टिक होने के चांसेस होते हैं, वो ठीक तरीके से पैकेजिंग उसकी नहीं हो पाएगी और डिफरेंट इंस्टेबिलिटीज इश्यूज क्रिएट करेगी. तो इसलिए हमें ये देखना होता है कि हम जो भी बाइंडर्स यूज कर रहे हैं हम करेक्ट बाइंडर्स यूज करें इन द that too in the right amount. So that is why हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज करते हैं ये देखने के लिए कि जो भी अभी हमने इश्यूज यहाँ पे स्टडी किए हैं वो इश्यूज हमें फॉर्मुलेशन डेवलप करते टाइम फेस ना हो. वी कैन ओवरकम दीज इश्यूज. नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ स्टेबिलिटी स्टडीज. तो स्टेबिलिटी स्टडी का पहला पर्पस है, फर्स्ट पर्पस इज टू एंश्योर द एफिकेसी, सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ द एक्टिव ड्रग सब्सटेंस. तो जो भी हमारा ड्रग सब्सटेंस होता है, मतलब अल्टीमेट क्या एम क्या होता है किसी भी डोजेस फॉर्म को डिलीवर करने के लिए? अल्टीमेट एम इज कि ड्रग शुड बी इफेक्टिवली, सेफली एंड एक्टिवली reaches to the site of action and shows a pharmacological effect. तो अगर हम स्टेबिलिटी स्टडीज करते हैं तो जो भी लिमिटेशंस आती हैं उसको साइट ऑफ एक्शन में पहुंचने के लिए, तो वो सारी लिमिटेशन हम ओवरकम कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल डोजेस फॉर्म डेवलप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टू स्टैब्लिश द सेल्फ लाइफ. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेल्फ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ लाइफ से हमें ड्रग की एक्सपायरी डेट पता चलती है कि हाउ लॉन्ग द ड्रग इज गोइंग टू बी इन द एक्टिव स्टेट, हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू गिव योर फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स. तो अगर किसी पेशेंट को सीवियरली कुछ डिसीज हुई है और उसे फार्माकोलॉजिकली एक्टिव ड्रग नहीं मिली, कुछ ऐसी ड्रग आपने दे दी, तो इट विल बी इन द सीवियर कंडीशन. सो दैट इज वाई एक्सपायरी डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस एक्सपायरी डेट can be determined with the help of stability study. Next is to gain information about the packaging. Stability studies also define the packaging status. If the drug is oxygen sensitive, if the drug undergoes hydrolysis, or if the drug is sensitive to certain specific material. So with the help of pre-formulation studies we can identify those characteristics and we can overcome it during the actual packing of the dosage form. For example, if a drug is going oxidation, so we can produce such an environment, we can produce an inert environment so that we can pack the drug into it so that it is not in contact with the oxygen and it will not undergo oxidation. So like this we can choose an appropriate packing of a formulation. Next is the excessive condition of the product to store. What are the different condition of storage of a drug? We can determine with pre-formulation studies. We can keep it into the different condition at different temperature and humidity, and we can determine at what condition our drug is going to be stable, so that this data we can use it in the future for manufacturing, storing,
packaging and transportation of a dosage form. Next is determine compatibility of the drug with excipient and with other additive. We have to see the compatibility of the drug. So this stability studies also tells you that when you keep your drug and excipient for long duration, suppose you keep it for 1 month, then 2 months, 3 months, 6 months and 12 months, and you see that how the drug and excipients are interacting. You check your drug and excipient data regularly for any stability change. So this will help you to understand whether your drug is undergoing any interactions or not. So this is very important step when you develop a dosage form, because if this is detected on the later stage, that will result in excessive loss for the company. So that is why it is very important to determine the interaction between the drug and the excipient. Next is to determine the dosage form in which the drug is most suitable. अब हमें ऐसा डोजेस फॉर्म को डिटरमाइन करना है जिसमें हमारा ड्रग मैक्सिमम स्टेबिलिटी शो करेगा. अगर हमारी ड्रग की वाटर के साथ इनस्टेबिलिटी है, इट इज शोइंग सम इंटरैक्शन विद द ड्रग और इट इज अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस, सो दिस कैन बी आइडेंटिफाइड इन द प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज. या फिर हम सॉलिड स्टेट में ज़्यादा अच्छे से ड्रग को डिलीवर कर सकते हैं तो हम उसे पाउडर्ड फॉर्म में डिलीवर करेंगे. लेटर ऑन इट कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड एंड गिवन. सो दीज आर द डिफरेंट steps which can be identified before developing a dosage form, and how it has to be finally delivered. These data can be helpful in that. So these are the various important parameters which we can identify through the stability study. Next is importance of stability studies. So in this importance of stability study, we can correct the dose of active ingredient received. So stability data gives you that what is the actual amount of the drug which can be stable for a long period of time and which will be helpful in treatment of particular disease. क्योंकि हमें ड्रग को एक पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म में डेवलप करना है और इस डोजेस फॉर्म के अंदर ड्रग कितनी स्टेबल रहती है. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर डिसीज को ठीक होने के लिए एक्स mg ड्रग लग रहा है, तो ये एक्स mg ड्रग कितने टाइम तक स्टेबल रहती है और ये एक्स mg ड्रग आपके साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है. तो ये सारी चीजें हम स्टेबिलिटी स्टडी से डिटरमाइन कर सकते हैं. ड्रग का जो डिग्रेडेशन होता है या ड्रग का कुछ टॉक्सिक इफेक्ट होता है, टॉक्सिसिटी शो कर रहा है ड्रग को, तो ये भी हम स्टेबिलिटी स्टडी से डिटरमाइन कर सकते हैं. इट ऑल्सो हेल्प टू it also finds the method for the stabilization or prevention of the drug. हम ड्रग को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशन से, वो सारी चीजें हम स्टेबिलिटी स्टडी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और दे विल हेल्प अस. नेक्स्ट इज इट डिटरमाइन द लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ एंड स्टोरेज कंडीशन. जो हमारी हाफ लाइफ एंड स्टोरेज कंडीशन है, ये सारी चीजें भी हम स्टेबिलिटी स्टडी से डिटरमाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ड्रग एंड एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी. दिस कैन ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड. देन वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द डिफरेंट डिग्रेडेशन पाथवे कि हमारा ड्रग किस पाथवे से डिग्रेड होगा बॉडी के अंदर. कहीं वो ऐसा तो नहीं कि बॉडी के अंदर जाते ही डिग्रेड हो रहा है बिफोर शोइंग इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन. सो दिस स्टेप कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड. हम एक्सटेंट ऑफ डिग्रेडेशन भी डिटरमाइन कर सकते हैं एंड स्टोरेज कंडीशन भी डिटरमाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ये जो डेटा हमें मिलता है, जो भी डेटा साइंटिस्ट कलेक्ट करते हैं, ये डेटा आपके किसी भी डोजेस फॉर्म के मॉडिफिकेशन के लिए भी हेल्पफुल होता है. बिकॉज इन later stage, if we detect some problem, so scientists can use this data and they can modify your drug. Next, it also helps the regulatory authorities, because regulatory authorities do the documentation work for filing the patents and all, for filing to the FDA. So they need some data for the documentation. So these pre-formulation studies data can also be effective in that. Next is type of stability studies.
So stability studies can be of different types, such as physical stability study, in which you can study different physical changes if a drug is going, that is color, odor, taste, etc. Then next is therapeutically stable studies. Therapeutically stability study में you see that your drug is therapeutically stable or not, or whether it is undergoing any change or an active form of drug is converting into the inactive form. So this you can determine in the therapeutic stability study. Next is chemical stability. In chemical stability you can determine whether your drug is undergoing oxidation or hydrolysis, etc. So if it is undergoing, accordingly you can take some measures. Next is microbiological stability. In microbiological stability, you determine different microbiological studies, microbiology of the any microorganism. You will see that if there is a growth of microorganism in your formulation or in a drug, if it is, how it can be overcome. So basically it gives an idea whether your drug undergoes a microbial growth or not. Next is toxicological study. In toxicological study, it helps to determine whether your drug is toxic in nature or not. If it is, then you can take the appropriate measures to reduce the toxicity. So this is different types of the stability studies. नेक्स्ट इज वेरियस मेथड्स ऑफ स्टेबिलिटी टेस्टिंग. आप स्टेबिलिटी टेस्टिंग को किस तरीके से कर सकते हो? तो फर्स्ट इज रियल टाइम स्टेबिलिटी टेस्टिंग, नेक्स्ट इज एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग, एंड उसके बाद है रिटेन सैंपल स्टेबिलिटी टेस्टिंग. सो फर्स्ट यू विल सी एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग. So accelerated stability testing is performed for longer duration. जब भी आपको longer duration के लिए study करनी है तो आप real time stability studies कर सकते हो. इसका significance क्या होता है? ये product degradation के बारे में information provide करती है. It gives the information about product degradation. Next is it also provide the period of test depends on the stability of the product. तो डिफरेंट जो टेस्ट हम करते हैं वो क्या क्या होते हैं और उससे हमें स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैसे मिलती है, दैट कैन ऑल्सो बी डिटरमाइन. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग टेस्टिंग द डेटा इज कलेक्टेड एट अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी. आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में डेटा कलेक्ट कर सकते हो. तो रियल टाइम जो स्टेबिलिटी स्टडीज होती है हम डिफरेंट कंडीशंस में रखते हैं, जैसे डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट ह्यूमिडिटी कंडीशन. तो डिफरेंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशंस में वी यूज टू कीप इट एट डिफरेंट टाइम इंटरवल एंड वी यूज टू सी दैट कि हमारा ड्रग स्टेबल है या नहीं. तो हम एक 0 डिग्री में रखते हैं, 8 डिग्री में रखते हैं, 25 डिग्रीज में रखते हैं, 30 डिग्रीज पे रखते हैं. देन वी कीप इट एट 40 डिग्री. 40 डिग्री इज एक्सेलरेटेड स्टडी विच वी विल स्टडी लेटर. देन this is the different time intervals at which this is a different temperature at which we used to keep our drugs. Humidity हम 65 and 75% यूज करते हैं और इस ह्यूमिडिटी में अपने ड्रग को प्लेस करते हैं. तो ड्रग का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है टाइम ड्यूरेशन, दैट इज आप 1 मंथ के लिए रखते हो उसे. यू कीप इट फॉर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12th मंथ. 12 मंथ आप एक्सेलरेटेड स्टडी के लिए यूज करते हो. तो फ्रीक्वेंटली आप इस डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हो. यू एनालाइज इट एंड यू सी कि इतने टाइम इंटरवल में आपकी ड्रग स्टेबल है, अगर नहीं है तो कहीं डिग्रेड तो नहीं हो गई है. तो ये सारी चीजें आप इसमें से कनेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी स्टडीज. स्टेबिलिटी स्टडीज, एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज हम हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी में ऑब्टेन करते हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दैट इज 12 मंथ्स के लिए हम करते हैं. हेयर द प्रोडक्ट इज स्ट्रेस्ड. हम ड्रग को स्ट्रेस्ड कंडीशन में रखते हैं और स्ट्रेस्ड कंडीशन में रख के हम ये देखते हैं कि अगर कभी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन तो वो अफेक्ट करे हमारे स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है. देन नेक्स्ट इज रिटेन्ड सैंपल स्टेबिलिटी टेस्टिंग. रिटेन्ड
सैंपल स्टडीज में हम मार्केट प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं. सो दिस इज रिटेन सैंपल स्टेबिलिटी टेस्टिंग. नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल स्टेबिलिटी. तो जो भी फैक्टर्स केमिकल स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, दैट इज टेम्परेचर, pH, doses from diluents, hydrolysis, isomerization, polymerization, oxidation, solid state phase transformation, degradation, microbial attack, cyclization, photolytic, then dehydration और desolvation studies. तो ये different studies हैं जो हमारे फैक्टर्स हैं जो स्टेबिलिटी स्टडीज को हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ICH गाइडलाइंस. ICH गाइडलाइंस है दैट इज QA1R2. इन गाइडलाइंस से हम स्टेबिलिटी स्टडीज टेस्ट कर सकते हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड pH. Next is these are the different data collected from different countries. Different countries में हम जो भी studies हैं, for example different climatic definition क्या है, जैसे temperature, subtropical, hot and dry, hot and humid, hot and very humid condition में this is the country's name and this is the different temperature conditions on which we are keeping and this is the temperature and humidity. तो इससे हम ये पता करते हैं कि different countries में किस किस कंडीशन में हम ड्रग को प्लेस करते हैं. नेक्स्ट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी एनालिसिस. वी हैव सीन कि व्हाई स्टेबिलिटी इज स्टडी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज स्टेबिलिटी स्टडीज गिव्स द डेटा फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर स्टोरेज एंड फॉर मार्केटिंग. आपका ड्रग स्टेबल रहे, आपके ड्रग की सेल्फ लाइफ पता रहे, इसलिए हम स्टेबिलिटी स्टडीज करते हैं. सो वी विल जस्ट रिवाइज कि व्हाट वी हैव स्टडीड इन ऑल द स्लाइड्स. तो हमने इसमें स्टेबिलिटी की डेफिनेशंस देखी कि व्हाट इज स्टेबिलिटी. देन हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ प्री फॉर्मुलेशंस देखा कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज क्यों इम्पॉर्टेंट होती है स्टेबिलिटी स्टडीज करने के लिए. देन क्या क्या स्टेबिलिटी इश्यूज आते हैं जो हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में फेस करते हैं, क्या पर्पस होता है स्टेबिलिटी स्टडीज का. जैसे हमने देखा था कि वो सेफ्टी के लिए यूजफुल होती है, क्वालिटी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस के लिए यूजफुल होती है, सेफली ड्रग को डिलीवर करती है. तो ये सारे डिफरेंट पर्पस हमने स्टेबिलिटी स्टडीज के देखे थे. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टेबिलिटी एनालिसिस. हम स्टेबिलिटी एनालिसिस क्यों करते हैं, ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड. नेक्स्ट कम टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी स्टडीज. तो हमने डिफरेंट टाइप्स की स्टेबिलिटी स्टडीज देखी थी, जैसे फिजिकल, थेरेप्यूटिक, केमिकल, देन माइक्रोबायोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल. नेक्स्ट इज वेरियस मेथड जिससे हम स्टेबिलिटी स्टडीज कर सकते हैं. तो हमने देखा था डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट ह्यूमिडिटी कंडीशन में हम रखते हैं डिफरेंट टाइम इंटरवल में, जैसे 1 month, 2 months, 3 months, 6 months एंड 12 months, एंड वी कलेक्ट द डेटा एट रेगुलर टाइम इंटरवल और उसमें हम देखते हैं कि कोई चेंज आया है हमारे ड्रग में या नहीं आया है. नेक्स्ट हमने डिटेल में रियल टाइम स्टडी को देखा था. देन एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी को टेस्ट किया था. रिटेन सैंपल स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्या होती वो देखा था. डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल स्टेबिलिटी, इसको हमने स्टडी किया था. देन वी हैव सीन ICH गाइडलाइंस दैट इज QA1R2. ये आपकी स्टेबिलिटी स्टडीज को डिफाइन करती है. एंड वी हैव सीन द डिफरेंट कंट्रीज जिसमें क्या क्या कंडीशंस में आपके ड्रग को रखा जाता है. So hope you have got knowledge through this slide. In the next slide, in the next lecture we will discuss about the chemical stability. Chemical stabilities क्या क्या होती हैं, जैसे hydrolysis and oxidation, and हम इसको कैसे overcome कर सकते हैं. And pre-formulation studies में chemical stability क्या role play करती है, ये सारी चीजें हम next lecture में study करेंगे. Thank you.